A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the doubt question from your side. That is in chapter number 6, and the name of the chapter is Dissolution of Partnership Form. So after completing the doubt question from your side, now let's we move to the chapter number 6, the theoretical concept related to the company's account, issue of share, the chapter number 7 and the first chapter of the volume 2. And you know very well, in this chapter we discuss what is the definition of the company, what are the major feature of the company, as well as the different types of the company like public company, private company, one person company, and differentiate and we can easily differentiate among them, as well as we discuss about the types of the share, types of the share capital, as well as the difference between the reserve capital and capital reserve. And in the last video we already discussed about the issue of share, and we can see that there are basically two ways by which we can easily issue the share of the company, that is in private placement of share and public issue of share, as well as the concept of sweat equity share. So now in today's video, firstly we discussed the new topic, that is an concept of ESOP, that is an employee stock option plan. So let's we discuss about it. What is employee stock option plan? Employee stock option plan. It is a gift of the Companies Act 2013. बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 में ये एक नया प्रोविजन ऐड किया गया, दैट इज एन ESOP, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन a company may offer its share to its employee under the scheme of ESOP. यानी कंपनी ऑफर कर सकती है अपना शेयर किसको, अपने एम्प्लॉइज को, किस स्कीम के अंदर में, ESOP, दैट इज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. अकॉर्डिंग टू दिस right, you know very well, employee stock option plan means the option given to whole time director. WTD means whole time director, officer and employee. Right to purchase or subscribe. यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक तरह का ऑप्शन है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है. इस ऑप्शन के तहत में कंपनी ऑप्शन देती है होल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज को, किस चीज का, राइट टू परचेज और सब्सक्राइब. एक राइट देती है ताकि वो कंपनी के शेयर को परचेज कर सके या सब्सक्राइब कर सके at a future date. And the security offered by the company at a predetermined price, future date, at a
predetermined price, at a predetermined price which usually is lower than the market value. Market value or price. So you can see that the concept of ESOP very easily. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक प्लान है या एक ऑप्शन है जो एम्प्लॉयज को, होल टाइम डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को कंपनी ऑप्शन देती है कि वो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब या परचेस कर सकती है एट अ फ्यूचर डेट। किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे आप तय कर लीजिए आप किस डेट पे किसी कंपनी के शेयर को परचेस करना चाहते हैं, और एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। और प्री डिटरमाइंड प्राइस यानी डेट भी पहले से डिसाइड कर लीजिए, प्राइस भी पहले से डिसाइड कर लीजिए। और वो जो प्राइस होता है वो क्या होता है, जनरली लोअर देन द मार्केट वैल्यू से कम होता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करें, ईएसओपी में जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर। जैसे कि आपने कल पढ़ा था कि जब हम स्वेट इक्विटी शेयर परचेस करते हैं, कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉय है अगर कंपनी का स्वेट इक्विटी शेयर परचेस करता है तो उसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल। यानी शेयर होल्डर या वो एम्प्लॉय जिसने कंपनी का स्वेट इक्विटी शेयर करता है वो 3 साल तक उस शेयर को सेल नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर आपने ईएसओपी के अंडर में कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा है तो उसे आप 1 साल के अंदर सेल नहीं कर सकते। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ईएसओपी एंड स्वेट इक्विटी शेयर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ईएसओपी यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऑप्शन है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, उनको एक ऑप्शन देती है कि आप कंपनी के शेयर को परचेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड डेट पे और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, और वो प्राइस जनरली मार्केट वैल्यू से कम पे होता है और इसमें लॉक इन पीरियड होता है 1 साल। 1 साल के अंदर आप शेयर को बेच नहीं सकते हैं। Now let's move to the next theoretical point of this chapter is minimum subscription. What is minimum subscription? Let's discuss about it. ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। According to Companies Act 2013, Section 39, subsection 1, company cannot allot any share of the company to public unless the minimum subscription cannot be achieved. आपने देखा होगा थ्राइस्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो उसी में एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि अगर कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू करती है तो उसे कम से कम इतना शेयर मिल जाए ताकि वो शेयर को अलॉट कर सके। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक परसेंटेज ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि इतना कंपनी को सब्सक्राइब हो जाएगा, इतना अगर कंपनी सब्सक्राइब कर लेगी शेयर को तभी वो फ्यूचर में शेयर को अलॉट कर सकती है अपने शेयर होल्डर को। सो बेसिकली इसमें इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिख पाते हैं कि क्या है कि it provides that minimum subscription provide that company cannot allot share, company cannot allot share to public unless the amount stated in prospectus as the minimum amount subscribed. Minimum subscription means
बेसिकली देखिए, हम अगर बात करें तो होता क्या है, होता ये है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आया गया कि जैसे कंपनी का एथराइज शेयर कैपिटल जो है, एथराइज शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख शेयर है, 10 रुपए। कंपनी ने उसमें से इशूड शेयर कैपिटल किया 90,000, यानी पब्लिक को सिर्फ बेचा है, बेचने के लिए इशू किया है 90,000 शेयर। अब कंपनी को 90,000 शेयर अगर पब्लिक में इशू किया तो जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बिक जाएं, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं। हो सकता है कि 90,000 से ज्यादा के शेयर बिक गए हैं तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर 90,000 से कम बिकते हैं तो मिनिमम एक अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब इतना मिलेगा तभी कंपनी आगे शेयर अलॉट कर सकती है, आगे अपना काम कर सकती है। उससे कम मिलेगा तो कंपनी उस साल बिजनेस नहीं करेगी, सारे अमाउंट को रिटर्न बैक कर देगी। तो जनरली अगर हम ये डिसाइड कर दें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% है, कितना है 90%, तो कम से कम कंपनी को 81,000 शेयर मार्केट में सोल्ड आउट करना पड़ेगा। अगर कंपनी का 81,000 शेयर से कम का सब्सक्रिप्शन आता है, यानी 90,000 से ज्यादा आ गया तो गुड, 90,000 आ गया तो गुड, बट अगर 81,000 से कम आया तो कंपनी इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाई, इसका मतलब उस साल कंपनी को बिजनेस करने का राइट नहीं है। उस साल जितना पैसा उसके पास आया उसे रिटर्न करना पड़ेगा, उसके लिए भी प्रोविजन है कि इतने डे में। लेकिन आपके कोर्स में बस इतना समझना जरूरी है कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट होती है जिसे कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में स्टेट करती है, मतलब बताती है कि अगर उससे कम शेयर, अगर उससे कम सब्सक्रिप्शन आएगा तो हम उस साल बिजनेस नहीं करेंगे और आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे और उस साल हम सारा पैसा रिफंड कर देंगे। सो आई होप। और जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि जनरली मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू क्या होती है तो आप बताएंगे 90% जनरली, बट बेसिकली ये जो अमाउंट होता है ये कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्रेस करती है, मीटिंग में रेजोल्यूशन में पास करती है कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और ये इसलिए भी है ताकि अगर कंपनी इतना पैसा तो अरेंज कर ले कि वो उस साल सफिशिएंट बिजनेस कर सके, ऐसा ना कि इन्वेस्टर के पैसे लिए और उस पैसे को वेस्ट कर ले। इसीलिए कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी प्रॉपर्ली। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एन जनरल एंट्रीज ऑन द इशू ऑफ द शेयर। Let's we move to the numerical part of this chapter, that is the journal entry on issue of share. If we are talking about the issue of the share, you know very well company have a two option. चाहे वो कैश में शेयर को इशू करे या अदर देन कैश कंसिडरेशन शेयर इशू करे। सो कंपनी हैव अ टू ऑप्शन, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी अगर कंपनी अपना शेयर कैश कंसिडरेशन के यानी मनी के लिए इशू करती है तो क्या जनरल एंट्री पास करेगी। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, इन दिस सिचुएशन कंपनी कैन नॉट और कैन बी कॉल्ड ऑल द अमाउंट एट वन टाइम। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी वो 10 रुपए एक साथ भी मांग सकती है या इन इंस्टॉलमेंट भी मांग सकती है। सो कंपनी हैव अ टू ऑप्शन व्हाइल वी इशू द शेयर फॉर कैश, या तो सारा का सारा यानी 10 रुपए पूरा एक साथ मांग लेगी या फिर 10 रुपए को डिवाइड करेगी इन एप्लीकेशन
allotment and cost. So यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट होती है. पहला, when company called all amount of share in lump sum. लम सम मतलब सारा पैसा एक साथ मांग लिया. अगर कंपनी ने सारा पैसा एक साथ मांग लिया, सारा पैसा अगर एक साथ रिसीव कर लिया, तो सिचुएशन में पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे कंपनी ने शेयर का पैसा लम सम यानी एक साथ मांग लिया. एंड कंडीशन नंबर 2 सेज दैट व्हेन कंपनी कॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट का शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा. इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट जनरली अगर हम बात करते हैं तो वो 3 इंस्टॉलमेंट जनरली कंपनी फॉलो करती है. कुछ पैसा एप्लीकेशन पे डिमांड करती है, कुछ पैसा शेयर अलॉट हो जाने के बाद, और कुछ पैसा आफ्टर अलॉटमेंट यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट. सो कंपनी अगर शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है तो सिचुएशन में कंपनी पर 3 ऑप्शन है. 10 रुपए में मान लीजिए 2 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिया, 3 रुपए अलॉटमेंट में मांग लिया और 5 रुपए कॉस्ट. तो सिचुएशन में आपकी कई एंट्रीज पास होती है. इस सिचुएशन में आपकी एंट्री नंबर 1 होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो क्या एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. फिर such application money will be transferred to the share capital. फिर इस एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में. तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. ठीक है, फिर ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हुआ. फिर दूसरी एंट्री होगी जब शेयर अलॉट होगा. जब शेयर क्या होगा अलॉट होगा तो कंपनी क्या करेगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी. अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. जब अलॉटमेंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. सो यू कैन सी दैट देयर आर बेसिकली 2 phases. फर्स्ट, कंपनी ने क्या किया एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में. दूसरे फेज की पहली एंट्री यानी अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, यानी शेयर अलॉट करने के बाद हम क्या करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे यानी मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. और नेक्स्ट होगा अलॉटमेंट रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. उसके बाद तीसरा फेज है कॉल से रिलेटेड, जिसकी एंट्री होगी एंट्री नंबर 5 से आप कॉल्स ड्यू करेंगे, कॉल्स मनी ड्यू. जब कॉल मनी ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और फिफ्थ उसके बाद नंबर 6 होगा कॉल मनी रिसीव. जब कॉल का पैसा रिसीव होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स. कॉल्स में भी कई डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, ये मैं बता दूं. कॉल्स में कई तरह की कॉल्स होती हैं. पहली कॉल्स को फर्स्ट कॉल कहते हैं, सेकंड को सेकंड और लास्ट को फाइनल कहते हैं.
तो कॉल में भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये कितना भी लंबा जा सकता है, बट क्वेश्चन में एग्जाम में ज्यादातर 2 से 3 कॉल तक ही जनरली देता है। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। सो यू कैन सी दैट बेसिकली जब भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है फॉर कैश, तो हियर इट इज अ 2 ऑप्शन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। इन ऑप्शन 1 when company called all amount of share in lump sum, यानी सारा पैसा एक साथ मांग ले। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरा का पूरा एक साथ आप पे करिए। अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसकी एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और दूसरी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एक साथ सारी एंट्री। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में व्हेन कंपनी कॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट, अगर कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग रही है 10 रुपए के शेयर में, मान लीजिए 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए कॉस्ट में मांग रही है, तो सिचुएशन में पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे 3 रुपए से, फिर वो 3 रुपए ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 3 रुपए से, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे 3 रुपए से, फिर कॉस्ट मांगेंगे 4 रुपए से और कॉस्ट रिसीव करेंगे 4 रुपए से, जितने भी नंबर ऑफ शेयर हो उस बेसिस पे। सो प्लीज नोट डाउन this journal entry in your copy properly because it is a very important topic of this chapter. So after completing the journal entries, let's we move to the preparation of bank account of this chapter. Basically you know very well some of the question is asking about to prepare the bank account with the help of the journal entry. So अगर किसी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने को आता है, ठीक है, इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर बी में, so how we will prepare the bank account? As you can see that the format of bank account, particulars amount. अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने को बोलता है कि pass necessary journal entry as well as the prepare the bank account, in this situation पहले एंट्रीज पास करेंगे पूरी 6 एंट्रीज। कॉल्स में अगर 1-2 कॉल्स बढ़ जाएगी तो वहां पर हो जाएगा 6 से बढ़कर 8 हो जाएगा, अगर 3 कॉल हो जाएगी तो 8 से बढ़कर 10 हो जाएगा। वो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यू कैन सी दैट फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो क्या लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री भी पास होगी। दूसरे में देखिएगा फोर्थ एंट्री बैंक डेबिट है टू शेयर एलोन। फिफ्थ में एंट्री नंबर 6 कॉल्स के साथ, और फिर यहां पर हम लोग क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैंक अकाउंट व्हेन क्वेश्चन इज आस्किंग टू पास द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट, तो इस तरह से करेंगे। बट मान लीजिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दो, क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज द प्रिपेयर द कैश बुक, यानी अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोलेगा तो ध्यान से समझिए इस चीज को। इफ क्वेश्चन आस्किंग टू प्रिपेयर द कैश बुक, क्योंकि कैश बुक बनाना अलग है और पास बैंक अकाउंट बनाना अलग है। अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो ऑल द 6 एंट्रीज वेयर पास्ड, बट लेकिन अगर कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक का क्वेश्चन बोला है कैश बुक बनाइए, कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है कैश बुक के 2 कॉलम, बेसिकली 2 कॉलम कैश बुक में, कैश कॉलम बैंक कॉलम होता है। तो यहाँ बैंक से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो कैश बुक का कौन सा कॉलम बनाना है, अगर बैंक कॉलम बनाना है तो उस सिचुएशन में एंट्री नंबर 1 पास नहीं होगी, एंट्री नंबर 4 पास नहीं होगी और एंट्री नंबर 6 पास नहीं होगी। यानी अगर क्वेश्चन बैंक अकाउंट बनाता है तो पूरी 6 एंट्री पास करनी है प्लस बैंक अकाउंट बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 5 करना है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6 पास नहीं होगी, इसलिए मैंने इस पे कट कर दिया, as you can see that।
तो यहां पर आप नोट करके लिख लीजिएगा कैश बुक के नीचे एंट्री नंबर 1, 4 and 6 डिलीटेड। यानी आंसर में आप एंट्री नंबर 1, 4 and 6 पास नहीं करेंगे और सिमिलर वैसे से बैंक अकाउंट बना है वैसे ही आप कैश भी प्रिपेयर कर देंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। यानी कैश बुक बनाते समय एंट्री कम हो जाएगी और पास कैश बुक बनाते समय एंट्री कम हो जाएगी और बैंक अकाउंट बनाते समय जितनी एंट्रीज है वो सब पास। और कैश बुक का फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जैसे बैंक अकाउंट का फॉर्मेट आपने बनाया हुआ है। ठीक है, अब एट द कंक्लूजन ऑफ टुडेज वीडियो कुछ एडिशनल पार्ट बच गए हैं। वो एडिशनल पार्ट क्या है? वो है इशू ऑफ शेयर। अभी आपने जो पढ़ा इशू ऑफ शेयर, so there are two situations when company called all the amount of the share in lump sum and second when company called amount of share in installment। दोनों ही सिचुएशन में कंपनी शेयर को इशू तीन तरीके से कर सकती है। तीन तरीके से बेसिकली कर सकती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी दो तरह से शेयर इशू कर सकती है, पार और प्रीमियम। इसको भी आप चाहे तो थ्योरी में लिख सकते हैं कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो देयर आर बेसिकली 3 वे। इसको मैं आपको बता दूं, अगर इशू ऑफ शेयर तो उसमें दो पार्ट हैं। एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है पार पे और एक शेयर इशू कर सकती है प्रीमियम। पार मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर है और उसको इशू कितने में करती है? 10 रुपए में, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। लेकिन अगर कंपनी ने शेयर है 10 रुपए का, उसे 10 रुपए से ज्यादा यानी 12 रुपए, 15 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए 50 पैसे, यानी 10 रुपए से अगर एक पैसे भी अगर उसने एक्सेस वैल्यू में इशू किया है तो इट विल बी नोन एज एन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हम लोगों ने अभी जो एंट्रीज डिस्कस की हैं, दोनों कंडीशन वो इशू डिस्कस की हैं इशू ऑफ शेयर एट पार, यानी 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में इशू होगा तो क्या जनरल एंट्री होगी एप्लीकेशन नॉट पेड एंड कॉस्ट में, या लमसम के केस में क्या जनरल एंट्री होगी, कैसे बैंक अकाउंट बनेगा, कैसे कैश बुक बनेगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हेन कंपनी इशूड इट्स शेयर एट प्रीमियम इट मींस मोर देन द फेस वैल्यू। इन दिस सिचुएशन what general entry will be passed when company called the amount of the share in lump sum and when company called amount of the share in installment। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैश बुक और बैंक अकाउंट में क्या चेंजेस होंगे। वैसे बहुत ज्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीमियम पे शेयर को इशू करने का जो क्राइटेरिया है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आप लोग इतना कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। ओके, so in today's video we discussed a lots of the things. Firstly, we discussed the concept of ESOP. What is ESOP? That is an employee stock option plan, and it is an option or plan given to the shareholder by the company. In this option, company gave option to the shareholder, gave option to the whole-time director, officer and employees to purchase or subscribe its share at predetermined price at a predetermined date। यानी फ्यूचर डेट पहले से डिसाइड कर लीजिए, प्राइस डिसाइड कर लीजिए, उस डेट पे आप शेयर को खरीद लीजिए, लेकिन शर्त ये रहेगी कि 1 साल के अंदर आप उस शेयर को सोल्ड नहीं करेंगे। दूसरा आप लोगों ने क्राइटेरिया सुना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, एंड यू कैन सी दैट minimum subscription is an amount which are stated in the prospectus of the company कि अगर कंपनी उतना अमाउंट रिसीव नहीं कर पाएगी तो कंपनी उस साल बिजनेस नहीं करेगी, शेयर लॉट नहीं करेगी और आपके पैसे को रिफंड कर देगी। जनरली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होता है? 90% होता है। और उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस किया दैट इज एन इशू ऑफ शेयर, एंड यू कैन सी दैट कंपनी जो शेयर इशू करती है उसके दो पार्ट होते हैं, पार पे या प्रीमियम पे। पार में भी दो कंडीशन है कि कंपनी अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर रही है तो 10 रुपए को एक साथ मांगे, उसे बोले इशू ऑफ शेयर इन लमसम, एंड दूसरा इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट जिसमें हम लोग
एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स की बात करते हैं। उसी तरह से सिमिलरली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ कंपनी शेयर इशूड एट प्रीमियम, उसकी क्या कंडीशन होती हैं। ये जो प्रीमियम अमाउंट है 10 रुपए का शेयर अगर 12 में इशू हो रहा है तो 2 रुपए जो बच रहा है उस पैसे को कंपनी कैसे यूटिलाइज कर सकती है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट or suggestion regarding today's video, please ask me in online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड